اور آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت سرکرہ ریلوے کی بحالی کے لیے ایک بار پھر متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا منصوبے کی اراضی کا مسئلہ حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ KCR منصوبے کا دستاویزی کام جلدی مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سرکلر ریلوے جلد شروع کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ منصوبہ ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چین کے ساتھ سندھ اور وفاقی حکومت کا جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے گا۔ مزید بات کریں گے اقتدار انور سے۔ جی اقتدار، آپ کا اب سے کچھ دیر قبل وزیر سندھ کی زیر صدارت کراچی سرکلر ریلوے سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر ٹرانسپورٹ شجر انعام میمن، چیف سیکرٹری سندھ مرتضی وہاب اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ KCR منصوبے کو دوبارہ چائنیز حکام کو بھیجنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور KCR کا جو منصوبہ ہے اسے وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے ایک بار پھر چائنیز حکام کے آگے رکھیں گی۔ معادل شاہ کا یہ کہنا تھا KCR منصوبے سے شہر میں ٹریفک کے مسائل جو ہیں ان میں کمی آئے گی۔ KCR کا روٹ تقریباً 43.2 کلومیٹر طویل ہے اور اس کی اراضی کے مسئلے کو ایک ہفتے میں حل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وزیر سندھ نے بتایا ہے کہ ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چائنیز حکام کو یہ منصوبہ بھیج دیں۔ اگر وہ اس منصوبے پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کراچی جیسے بڑے شہر میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے حل ہو جائیں گے اور اس سلسلے میں جو دستاویزی کام ہے ان کی تیاری کرنے کا کہا گیا ہے اور کاغذات بنا کر دوبارہ ایک بار پھر منصوبے کا پرپوزل جو ہے وہ چائنیز حکام کو بھجوایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ KCR کی جو اراضی ہے اس کے لیے بورڈ آف ریونیو کو لکھا گیا ہے کہ اس کی اراضی کو الگ کیا جائے اور سندھ وفاقی حکومت اور KCR کا ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے گا جو کہ چائنیز حکام سے ڈائیلاگ کرے گا۔ جی بہت شکریہ اقتدار انور، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کچھ بات کریں گے شہر کے مسائل پر۔ شہر قائد میں پینے کے لیے پانی نہیں، صاف پانی سڑکوں پر ضائع ہونے لگا ہے۔ مین یونیورسٹی روڈ پر میٹھے پانی کی لائن ٹوٹنے کے باعث پانی کا ضیاع جاری ہے۔ تفصیلات بتائیں گی رابل اشرف۔ جی رابل۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں مین یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر برج کے بالکل سامنے جو کہ سیوک سینٹر سے آنے والا روڈ ہے۔ یہاں پر میٹھے پانی کی جو لائن ہے وہ ٹوٹنے کے باعث میٹھا پانی جو ہے وہ روڈوں پر ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی مجھے بتائیں کہ میٹھا پانی کب سے ضائع ہو رہا ہے؟ لوگوں کو پانی پینے کو میسر نہیں آتا اور یہاں پہ میٹھا پانی اس طرح ضائع ہوتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ پانی؟ میڈم آپ لوگوں کا بڑی شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج ادھر زحمت کر دیا اور آ گیا۔ ہم سامنے رہتے، میرا نام قیوم بنیری ہے۔ اس کے خلاف ہم نے 4 پوائنٹ درخواست بھی دیا۔ یہاں پر پانی کا ہمارے بستی میں بہت بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ کنویں کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 2-2.5 سال سے یہ پانی ضائع ہو رہے، اس کی وجہ سے کافی مشکلات لوگوں کو ہو رہی ہے۔ یہ مین روڈ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بستی کے اندر اتنا بیماری پھیل گیا اور اس کی وجہ سے روزانہ 10-12 موٹر سائیکلوں کی اسکیڈن بھی ہو رہے اور ہم نے اس کے خلاف تھانے میں بھی درخواست جمع کیا اور ٹریفک سیکشن میں بھی کیا، مگر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا اس میں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے شہری موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میٹھا پانی یہاں سے ضائع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے درخواستیں بھی جمع کرائی تھی مگر ان کی درخواست پر کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موٹر سائیکلوں کا آئے روز یہاں پر جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ منشیات فروشی کے عادی لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور اس پانی میں نہاتے ہیں، اور جبکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میٹھا پانی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ڈینگی پھیلنے کے بھی خطرہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری بستی میں جو ہے کافی بیماریاں بھی اس پانی کی وجہ سے پھیل گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور جو یہاں پہ آ کے کپڑے دھوتی ہیں بچے اس پانی میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی سندھ سرکار نے کراچی کے شہریوں کے لیے پانی کی فراہمی اور نکاسیاب کے لیے نئے مالی سال میں 4.39 کروڑ 21 لاکھ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد MD کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ KMD نے سفارش محکمہ ترقی و منصوبہ بندی بورڈ کے پاس جمع کروا دی ہیں۔ سندھ سرکار نے کراچی کے شہریوں کے لیے پانی کی فراہمی اور نکاسیاب کے لیے نئے مالی سال میں 4.39 کروڑ 21 لاکھ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بات کریں گے آزاد نوریو سے۔ آزاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، کراچی کے شہریوں کا دیرینہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سندھ سرکار نے کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے لیے خطی رقم مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے MD نے باضابطہ طور پر منصوبہ تیار کر کے سفارشات محکمہ ترقی و منصوبہ بندی بورڈ کو ارسال کر دیا۔ یہ رقم جو ہے نئے مالی سال 2023 اور 2024 میں 4.39 کروڑ 21 لاکھ روپے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس میں کراچی کی گنجان آبادیوں کو واٹر ٹینکر کے ذریعے جو ہائیڈرینٹ وہاں سے پانی کی فراہمی مفت میں کی جائے گی۔ اس حوالے سے 66 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے، جبکہ ناز آباد کے علاقے میں نکاسی آب کی ناکارہ پائپ لائن
की बहाली पर 73 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस करने की सिफारिश की गई है, जबकि स्कीम 33 हाजी रमजान कोट में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 61 करोड़ 34,09,000 रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। नॉर्थ कराची में वाटर सप्लाई की नाकारा पाइपलाइन की बहाली के लिए 48 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है, जबकि कराची शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई की पाइपलाइन के लगाने के लिए 15 करोड़ 43,41,000 रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। औरंगी टाउन में निकासी आब की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। बिन कासम टाउन में निकासी आब के लिए 9 करोड़ 99,90,000 रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। जिला वस्ती में पानी की पाइपलाइन लगाने के लिए 74 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। नॉर्थ कराची में चौक होने वाले जो पाइपलाइन है उनकी अल्सर बहाली के लिए 47 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। गुलबर्ग टाउन में निकासी आब के लिए 61 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। किलस्टन के इलाके जिला जनूबी में सीवरेज की बहाली के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। गुलबर्ग टाउन में सीवरेज के निजाम की असर बहाली के लिए 48 करोड़ 33 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की जोड़ तोड़ जारी है। पीटीआई के मजीद चेयरमैन और काउंसलर्स का पीपल्स पार्टी से राबता, 20 से ज़ायद चेयरमैन पीपल्स पार्टी से राबतों में हैं। आपको बताएं कि मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। पीटीआई के मजीद चेयरमैन और काउंसलर्स का पीपल्स पार्टी से राबता, 20 से ज़ायद चेयरमैन पीपल्स पार्टी से राब्तों में हैं। मलीर, केमाड़ी, वेस्ट, कोरंगी और साउथ में राब्ते। पीटीआई के मुतादिद बल्दियाती नुमाइंदे मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत से पीटीआई के नुमाइंदों के राब्ते। पीपल्स पार्टी को मेयर कराची की कामयाबी के लिए 10 से ज़ायद वोट दरकार हैं। अब आपको बताएं कि कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात की है। मुलाकात में मरदमशुमारी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे बहस आए। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मरदमशुमारी के बाद अदाद-ओ-शुमार की तस्दीक के लिए वक्त मुकर्रर करने से ही मुल्क भर से शफाफ नताइज हासिल हो सकेंगे। मरदमशुमारी की दुरुस्तगी और तस्दीकी अमल के लिए एहसन इकबाल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुजारिशात से मुकम्मल इत्तफाक किया है और इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मरदमशुमारी पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। अब आपको बताएं कि डॉलर के 290 रुपए तक गिरने की खबरें दुरुस्त नहीं। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराजा कहते हैं कि डॉलर 311 रुपए से गिरकर 300 रुपए तक आया है। डॉलर की सप्लाई न होने पर डॉलर फिर से 305 से 308 रुपए तक पहुंच जाएगा। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी देखा जाए स्टेट बैंक की जानिब से बड़ा इकदाम हुआ है, जो यानी कि क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो इंटर बैंक में मुंतकिल की गई है, जिसके बाद भौचाल आ गया है। ओपन मार्केट में देखा जाए, जब आज कारोबार का आगाज़ हुआ था तो ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपये से गिरकर 300 रुपये की सतह पर आ गया। हम यहाँ जफर प्राचा एक्सचेंज जो है, हमारा प्राचा एक्सचेंज वहाँ पर मौजूद है। अगर आपको दिखाएँ हम आपको स्क्रीन पर, डॉलर की इस वक्त किसी के पास डॉलर पड़ा हुआ है, जो आवाम अगर डॉलर बेचेगी 297 रुपये का यहाँ पर ख़रीदा जाएगा, और डॉलर जो बेचा जा रहा है यहाँ आवाम को 300 रुपये के करीब बेचा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं जफर प्राचा जनरल सेक्रेटरी ई कैप, उनसे क्या सूरत हाल है सर? लोग कह रहे हैं 27, 25 रुपये सस्ता हो गया डॉलर। देखिए जनाब, बात यह है तकरीबन 10 से 11 रुपए डॉलर का रेट कम हुआ है, और सुबह हम लोग 300 रुपये में सेलिंग कर रहे थे। लेकिन इस वक्त फिर हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज हुई है। जो हमारा ख्याल था कि लोग बेचने आएंगे, लेकिन लोग बेचने नहीं आ रहे। अब वापस मार्केट में एक इत्तला के मुताबिक 308 रुपये 310 रुपये पे काम हो रहा है, क्योंकि ये अगर इन्फ्लोज नहीं आएंगे तो हम कहाँ से देंगे। गो के स्टेट बैंक का जो ये कानून जो उन्होंने बनाया बहुत अच्छा है, और इससे जो डॉलर का रेट है और जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट है वो कम होगा, गैप कम होगा। एक ये बहुत अच्छा खुशाइंद इक़दाम है। गो कि इससे हमारा 80% बिज़नेस कम हो गया है, लेकिन हमने मुल्क के लिए, मुल्क की इकनॉमी के लिए हमने इसको वेलकम किया है। और हमारी ही मुख्तलिफ तजवीज़ के साथ साथ ये भी एक तजवीज़ थी कि फ़िल वक्त आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इंटर बैंक की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं ताकि गैप कम हो और डॉलर का रेट कम हो। जैसा कि आपने सुना, हकीकत क्या है मार्केट में, यानी कि सुबह जब मार्केट खुली थी तो डॉलर जो है 311 रुपये से घट कर जो है 300 रुपये की सतह तक आया था। उस वक्त डॉलर जो है फ़रोग
بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سوچا یہ گیا تھا کہ مارکیٹ میں خریدار جو ہے بیچنے ڈالر آئیں گے جنہوں نے ڈالر ہولڈنگ کی ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر سے ڈالر میں ایک بار پھر ڈیمانڈ دیکھی جا رہی ہے. لیکن حقیقت آپ کو ایک بار پھر دکھاؤں کہ ڈالر کہیں بھی آپ کو 290 295 نظر نہیں آ رہا، ابھی بھی 300 روپے پہ کھڑا ہوا ہے. حقیقت میں جو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت، یعنی کہ ایکسچینج کمپنی میں جو ایکسچینج ریٹ ہے دیگر کرنسی کا بھی دکھائیں تو دیگر کرنسی کے بھی ریٹ گر گئے، لیکن اس کو بھی امپیکٹ یہ دیکھا جائے کہ سپلائی چین کے اوپر. شکریہ اشرف خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حکومت کی طرف سے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے ریلیف ہے. پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 37 روپے تک کی کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 438 روپے سستا ہو گیا ہے. گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2321 روپے مقرر. کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 1686 روپے کی کمی. جون کے لیے کمرشل سلنڈر کی قیمت 8933 روپے مقرر. مئی میں ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2758 روپے تھی. لی مارکیٹ تاجر اتحاد نے پیٹرول 200 روپے لیٹر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک ماہ کے دوران 20 روپے کی کمی سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. کاوش میمن کی رپورٹ. آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے باوجود حکومت کا عوام کو ریلیف. تاجر برادری پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کی کمی سے بھی ناخوش. لی مارکیٹ تاجر اتحاد کے جنرل سیکرٹری عبداللہ یوسف زئی کہتے ہیں پیٹرول ایک ماہ میں 20 روپے سستا ہوا مگر مہنگائی کم نہیں ہوئی. پیٹرول 200 روپے لیٹر اور ڈالر سستا ہوگا تبھی مہنگائی کنٹرول ہوگی. جناب 20 روپے تو پہلے انہوں نے 12 روپے کم کیے، اس کے بعد 8 روپے کم کیے، تو 20 روپے سے مہنگائی میں کمی نہیں آئے گی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آواز دی تھی، ہم نے سنا تھا کہ 100 روپے پیٹرول کم ہوگا. میرے خیال میں پیٹرول کم سے کم 200 روپے ہونا چاہیے. عبداللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے معیشت بڑا چیلنج ہے. تاجر معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تاجروں کو ریلیف ملا تو معیشت بھی ترقی کرے گی. جب ہمیں ریلیف ملے گا اور ہمیں سہولتیں ملے گی، مہنگائی میں قابو ہوگا، تب معیشت چلے گی. اور تاجر جو ہے یہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس حکومت سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ تاجروں کے ساتھ بہتر سلوک رکھے گی. تاجروں نے مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین اجلان شیپا کے ہمراہ کاوش میمن 321. وفاقی وزیر تجارت نوید قمر سے کراچی کے صنعت کاروں نے ملاقات میں گیس مسائل حل کرانے کی اپیل کر دی ہے. وفاقی وزیر تجارت نوید قمر کا کہنا ہے کہ صنعتی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم تک بات پہنچاؤں گا. صنعتی شعبے کو بلا تعطل گیس فراہم کی جائے. وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر سے کراچی کے صنعت کاروں نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مرکزی دفتر میں ملاقات کی. وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے کہا کہ صنعت کاروں سے ملاقات میں گیس فراہمی پر بات ہوئی. صنعتی شعبے کا روزگار فراہمی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ہے. صنعتی شعبے کو بلا تعطل گیس فراہم کریں گے. صنعت کاروں کی گیس قلت کا درینہ مسئلہ حل کرانے کے لیے اقدامات پر وفاقی وزیر کا شکریہ ادا بھی کیا. وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں مزید روٹس پر جلد بسیں چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اطلاعات نے انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم اور ای کارڈ سسٹم کا کام فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں. شرجیل میمن نے پیپلز بس سروس کی اپلیکیشن کا کام بھی فی الفور مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز بس سروس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم فوری طور پر فعال کیا جائے اور الیکٹرک بسز کے چارجز کی کمی فوری ختم کی جائے. سندھ ہائی کورٹ میں ایم پی او کے تحت نظر بند پی ٹی آئی کارکنان کی رہائی کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے بلال احمد. جی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ایم پی او 3 کے تحت نظر بند کرنے کا معاملہ ہے. سندھ ہائی کورٹ میں متعدد آئینی درخواستوں کی سماعت ہوئی. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ اور جسٹس یوسف علی سعید پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت کی. دوران سماعت جو کارکنان نظر بند ہیں ایم پی او کے تحت ان کے اہل خانہ اور وکلاء کمرہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ پولیس افسران اور حکام بالا بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی ایم شیخ کو وکلاء کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ندیم جو کہ میرپور خاص میں بند ہیں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور ایم پی او کے تحت نظر بندی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. دوران سماعت عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جیل سپرنٹینڈنٹ میرپور خاص کو طلب کیا، تاہم ان کی جگہ اسسٹنٹ
जेल सुपरिटेंडेंट पेश हुए और अदालत को वो मुतमईन ना कर सके, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप हमें 5 मिनट के अंदर तमाम तफसीलात बताएं, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही IG सिंध को भी फौरी तौर पर तलब किया जाएगा, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत को फिर बताया कि जो नदीम शहरी है उसको फौरी तौर पर रिहा किया जा रहा है, और अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया कि नदीम को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार भी ना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो आज ही कराची मुंतकिल हो जाएं। साथ ही अदालत ने कहा कि ऐसे कारकुनान जिनके खिलाफ कोई किसी भी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और वो MPO 3 के तहत बंद थे, उन सबको रिहा कर दिया जाए 10,000 रुपये फ़ी ज़मानत के इवज़, जबकि अगर ऐसे मुलजमान या अफराद जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं तो अदालतों में पेश किया जाए। जी। पाक फौज से इजहार यकजहती और सानिया 9 मई के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की लेबर फ्रंट के ज़ेर तमाम रैली का इनेकाद किया गया। रिजवान अहमद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की जानिब से आज इस्तेहकाम पाकिस्तान की रैली का एहतमाम किया गया, जो कि लेबर फ्रंट की जानिब से किया गया है। उसके सदर हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के अब्दुल कयूम ज़ई, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा आज की रैली के इनेकाद का मकसद क्या था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो आज की रैली जो है फ़ौज से, अपनी पाक फ़ौज से जो है वो इजहार यकजहती के लिए थी, और KMC के मुलाजमीन के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये बिल्कुल कहने में आर महसूस नहीं करता कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर इन्हें, बड़े बड़े नाम उनके इन्हें, और साल से वो यहाँ पर कभी इक़्तिदार में रहे हैं और कभी इस्टेब्लिशमेंट उनकी रही है। उसके बावजूद आज KMC के मेहनत कशों का ये हाल है कि अभी मैंने देखा कि मुझसे लोग कह रहे थे कि हमें पेंशन नहीं मिल रही, तनख्वाह वक्त पे नहीं मिल रही, ओवर टाइम नहीं मिल रहा, यहाँ तक ये कि कूड़ा करकट जो है उसके पैसे भी जो है अफसरान खा जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं होना चाहिए था, और जिन लोगों ने, मैंने नाम लिया अभी अपनी स्पीच में, कर्नल शेर का जो है वो मुजस्मा जो है उसको उठाकर फेंका, वो किसी सूरत पाकिस्तानी नहीं हो सकता। दिल खून के आंसू रो रहा था। खुदा के लिए इस कौम को समझना है, वरना आप ये याद रखना, हम पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो गया तो आपका हाल बहुत बुरा होगा। सीरिया को देख लो, इराक को देख लो, उस अमेरिका ने, उसने जो है उनकी फ़ौजों को तबाह किया, और उसके बाद वहाँ पर जो है बहुत बुरा हाल है, रोटी इज्जत तक के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं लाइन डालेंगे, पानी नहीं देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का ये लेबर विंग अपनी लेबर फ्रंट यूनियन के हवाले से KMC के तमाम मजदूरों को बग़ैर किसी रंग नस्ल के ये यकीन दिलाता है कि आपके पेंशन के मामलात, आपकी तनख्वाह के मामलात, जो भी आपके राइट्स हैं, उस पर लेबर विंग भरपूर तरीके से लड़ाई करेगी, और ये सारे राइट्स इंशाल्लाह आपको दिलाएगी इंशाल्लाह। लेबर फ्रंट की इस रैली में मुख्तलिफ जो मजदूर तंजीमें हैं उनके रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली, पाक फ़ौज के हक़ में ये रैली निकाली गई थी, और इसमें बाकायदा तौर पर जो है लेबर फ्रंट के KMC में फ़ाल होने का ऐलान भी कर दिया गया है। जी। जुडिशरी मजिस्ट्रेट से शर्की में 1 करोड़ 12 लाख रुपए के फ्रॉड के मुकदमे की समाअत हुई। मजीद बताएंगे शहरियार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। अजीज़ भट्टी थाने की हदूद में मुलजिम बिलाल अख्तर, इमरान अख्तर और दीगर 9 मुलजिमान के खिलाफ 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत के फ्रॉड के मुकदमे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आज अहम समाअत हुई। नामजद मुलजिमान के खिलाफ ये जो फ्रॉड का मुकदमा है, ये नासिर अली भट्टी वल्द असगर अली भट्टी की जानिब से अजीज़ भट्टी थाने में जो है वो दर्ज किया गया था। नामजद मुलजिमान के खिलाफ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स करते हुए आज मुद्दई मुकदमा के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि साल 2017 में जो है वो मुद्दई मुकदमा और नामजद मुलजिमान के दरमियान एक जो है वो एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत जो है वो मुद्दई मुकदमा की जानिब से तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख रुपए का माल जो है वो नामजद मुलजिमान को उधार पर दिया गया, जिसके बाद जो है वो उनके माल के एवज़ मुलजिमान की जानिब से महज 25 लाख रुपए की रकम जो है वो मुद्दई मुकदमा को दी गई। बाकी जो है वो तकरीबन 87 लाख रुपए के चेक जो है वो मुलजिमान की जानिब से मुद्दई मुकदमा को दिए गए, जो कि बाउंस हो गए थे। मुद्दई मुकदमा
मुकदमा के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह का ये भी बताना था कि तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर चुका है इस वाक़े को, और तब से जो है वो नामजद मुल्ज़िमान मफरूर हैं। आज जो है वो मुद्दई मुकदमा के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि जो है वो मफरूर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएँ, जिसके बाद अदालत की जानिब से तमाम तर शवाहिद देखने के बाद और मुद्दई के वकील के तमाम तर दलाइल सुनने के बाद मुद्दई मुकदमा के तमाम तर दलाइल से इत्तेफाक करते हुए आज जो है वो नामजद मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं, जबकि मुकदमे की समाअत जो है वो 14 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू कहते हैं कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात से मुतालिक सख्त इक़दाम किए गए हैं। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। और इससे कबल मैट्रिक के इम्तहानात भी मुनक़िद हुए थे और अब आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत भी इम्तहानात जो हैं जारी व सारी हैं। इस्माइल राहू साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, मैट्रिक के इम्तहानात में काफ़ी बदअनवानियाँ हमें देखने को नज़र आई थी और आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत भी अब इम्तहानात चल रहा है। सर, आपकी कितनी गहरी नज़र है इन तमाम तर मामलात पर? देखें, हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि हम किसी किस्म की बेकायदगी ना हो। हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया हुआ है तमाम बोर्ड्स के अंदर, सिंध के जितने भी बोर्ड्स हैं, और तमाम इम्तिहानी मराकज़ में हमारी कोशिश है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। और नकल के वाक़यात भी हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम किसी तरीके से हर मुमकिन उसको ट्रांसपेरेंट और शफाफ बनाएं। सर, आपने इससे कबल एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि इलेक्ट्रिक के नाम कि आप लोगों ने दरख्वास्त की थी कि भाई इम्तिहानी औकात में जो है लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक तो टस से मस नहीं हो रही है। तो सर, ये क्यों इतनी हरदर्मी उनकी जानिब से? ये कोई नहीं, लेकिन तमाम जितनी भी बिजली मुहैया करने वाली कंपनीज़ हैं सिंध के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि फ़कत कराची के अंदर नहीं, पूरी सिंध के अंदर तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात हो रहे हैं 9वीं से लेके 12वीं तक। तो फिर यही तरीका था काम चलाने का जी आप ऑनलाइन क्लासेस हों, ऑनलाइन ट्यूशन हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बंदोबस्त हो। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो नशस्तें जो है कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले आई है। तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है, राइट है, और उनका जो है वो मेयर बने और इंशाल्लाह बनेगा। और लेकिन पीटीआई ने जो कुछ किया, कभी भी सियासी जमायत कोई भी जो है वो अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुँचाती। हाँ, एहतजाज करने का हर सियासी जमायत को, हर सियासी फ़र्द को हक है। और आपने देख लिया, अभी मुश्किल वक्त तो उन्होंने देखा ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि जेल होता क्या है। और जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि ये सिलेक्टेड हैं, और साबित हुआ कि वो सिलेक्टेड थे। बहुत शुक्रिया जी। इस्माइल राहू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा, बड़ा ब्रीफली उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक जो पीपल्स पार्टी जो एक पहले मौक़िफ़ अपनाती थी, अब वही चीज़ें जो हैं अब सामने नज़र आ रही हैं। इसके अलावा तालीमी इदारों के हवाले से उन्होंने कहा कि जामियात में जो बदअनवानियाँ हुई थी, जो मैट्रिक इम्तहान में बाद उससे मुतल्लिक भी तहकीकात जो है कर रहे हैं। अगर जिसकी भी गलती हो उसको जो है कटघरे में लाया जाएगा। जी, साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत को बजट तजावीज़ दे दी हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। बजट की तैयारी ताजरों ने तजावीज़ दे दी। साइट एसोसिएशन के सदर रियाजुद्दीन बोले, माशी नमू जब मनफी हो तो बजट बनाना बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत ने दरामदात कम करने के लिए जो पाबंदी आयद की, उससे सनतों की पैदावार शदीद मुतासिर हुई। हुकूमत को बजट में दरामदी खाम माल का कोटा फिक्स और हर सेक्टर की आमदनी पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है। हमारा टैक्स टू GDP रेशो कम है, और टैक्स टू GDP रेशो कम इस वजह से नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देते, बल्कि हमारा जो टैक्स बेस है वो बहुत नैरो है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम कलेक्ट कर रहे हैं, हर एक से वसूल कर रहे हैं। वो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है तो टैक्स दे रहा है, टूथपेस्ट ख़रीद रहा है, चाय मसाले, उनके ऊपर टैक्स दे रहा है। असल मसला जो है इनकम के ऊपर टैक्स का है। हम इनकम के ऊपर अपनी टैक्स कलेक्ट करने में FBR जो है वो नाकाम है। रियाजुद्दीन ने कहा, डॉलर कमाने के लिए बरामदी सेक्टर को बिजली और गैस के रेट रीजनल ममालिक के बराबर करने का मशवरा दिया है। रीजनली कंपेटिटिव जो टैरिफ्स थे 19 रुपये 99 पैसे बिजली के, वो हमने विड्रॉ किए, प्री मैच्योरली विड्रॉ किए, कैबिनेट के डिसीजन के बावजूद विड्रॉ किए। फिर गैस के लिए जो कंसेशनरी टैरिफ थे कि अगर बिजली अपनी जनरेट करें, उसको हमने विड्रॉ किया। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपोर्ट की बढ़ा दी, इसलिए कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बदकिस्मती से उनमें जो है सब्सटेंशियल इजाफा हो गया, 21% पे चले गए। सदर साइट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टैक्स टू GDP का तनासुब कम होना है। हुकूमत सिर्फ मौजूदा टैक्स दहंदगान पर ही बोझ डाल देती है। मसाइल का वाहिद हल तमाम अफराद की आमदनी पर टैक्स आयद करना है। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। PCB की ज़रिए निगरानी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं।
जावेद इकबाल अपडेट करेंगे। कराची में मौजूद हूँ जहाँ पर आज KCCA जोन 7 के इलेक्शन जो है इख्तिताम पजीर हो गए। इसमें किस ग्रुप ने कामयाबी हासिल की है? मज़हर लेवान को सदर मुंतखब किया गया है, इनके क्लब के अहदेदारों ने वोट दिए, हम इनसे बात करेंगे। मज़हर भाई, आप इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, आपने जोन 7 के सदर बने हैं, और कौन कौन से अहदेदार आपके साथ आए हैं और तरजीहात क्या आपकी अब आगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग जो है KCCA जोन 7 से इलेक्शन लड़े और हम कामयाब हुए और हमारे सारे लोगों ने हमें वोट दिया। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम पे एतमाद किया। मैं एज ए प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हुआ हूँ। इस हमारे साथ ही जो है अब्दुल भाई जो है हमारे जो हैं वो सेक्रेटरी, और ज़हीरुद्दीन भाई हमारे काबिल मोहतरम जो है हमारे बड़े सीनियर हैं, उनको ट्रेजरर हमने इलेक्ट किया है। और हमारी तरजीहात ये हैं कि जोन 7 के अंदर जो है हम बेहतर से बेहतर काम करें और जो हमारे प्लेयर हैं वो प्लेयर आगे निकल के जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमने जो है अभी पिछले 2 साल से जो है हमने अपने जोन में काम किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि फ्री एकेडमी MM बेग क्रिकेट एकेडमी हम जो है ना रन कर रहे हैं। MM बेग साहब का नाम जो है वो जो है ना किसी तारुफ का मोहताज नहीं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए काम किया। आप लोगों ने इसमें जी कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन इलेक्शन में हर जगह 2 ग्रुप थे, 2 पैनल थे, एक एजाज फारूकी साहब का, दूसरी तरफ नदी उमर और जावेद साहब का पैनल था। तो आप लोग अब किसको वोट देंगे जो KCC के मेन इलेक्शन होंगे, मरकजी इलेक्शन? देखें, हमने इस वक्त जो है ना हमने नदीम उमर भाई का ग्रुप जो पैनल जो है मुकम्मल तौर पे जो है ना जीत चुका है। हम उनको मुबारक पेश करते हैं और इंशाअल्लाह फ्यूचर में जो है वो सेंटर में हम इनको ही वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, और जहन में क्या है कि किस तरह से आगे काम करना है जाके, क्योंकि अब जोन 7 में आप लोगों ने सिस्टम चलाना पड़ा? देखिए, जोन 7 के अंदर जो है काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। उन मसले मसाइलों को सबसे पहले हल करना है और जो हमारे प्लेयर हैं ख़ास तौर पे जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम करना था वो इंशाल्लाह ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। MM बेग अकेडमी जो है वो अंडर 9 से लेकर अंडर 19 तक जो है ऑलरेडी काम कर रही है और उसके आगे जो है वो जो ग्रास रूट के बाद जो है ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह और जो अंडर 19 के लड़के उनको जो है ना आगे प्रमोट कर रहे हैं। ये अभी हमारे यहाँ जो है जोन 7 के अंदर जो है MM बेग अकेडमी रन हो रही है, जो कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नेट प्रैक्टिस दे रही है और वहाँ पर कोचेज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि हम जो है ना MM बेग क्रिकेट अकेडमी के ज़रिए से ही जोन 7 के बच्चों को प्रमोट करें और आगे जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। सुना आपने मज़हर अली अवान साहब बताया था कि उनकी तरजीहात क्या हैं, किस तरह से काम करेंगे। उनका ये भी कहना था कि वो अब जीत तो चुके हैं जोन 7 का इलेक्शन और अब मरकज़ी सतह पर जो KCC के इलेक्शन होंगे उसमें वो वोट देंगे नदी उमर और जावेद अहमद साहब के पैनल को, क्योंकि उनका कहना था कि वो जीत चुके हैं, सादा अक्सरियत उनको हासिल हो गई, तो ये भी चाहेंगे उनको सपोर्ट करें और अच्छी तरह से कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का निज़ाम जो है वो चलाएँ। जी।